हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। यहां पर हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। ओके, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट हम लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, एक बार वो वीडियो देख कर आइए एंड देन वील कंटिन्यू विद द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। So, what is middle level management? Now, middle level management, bina going into the proper definition that is given in the books, we can say middle level management are all the department heads in the company. These are the people, एकदम ये line याद रखना, who are responsible for the execution of the plans formulated by the top level management. जो काम, जो डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है वो सिर्फ डिसीजन लेती है। दे आर नॉट गोइंग टू पुट लेबर, वो लेबर पुट करके, वो मेहनत करके उस प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने का काम इट इज ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर्स। नाउ हु आर जनरली दीज मिडिल लेवल मैनेजर्स? तो एज आई सेड जस्ट नाउ, दीज आर द डिपार्टमेंट हेड्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। क्या एग्जाम्पल लिया था पिछले वीडियो में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होंगे वही हमारे बनते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। दीज आर द पीपल हु टेक द प्लान्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देन एग्जीक्यूट इट अमंग्स द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रॉपर डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स एंड देन वील मूव अहेड विथ व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड अल्टीमेटली कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। Okay, so now the branch managers, departmental managers constitute middle level management. ठीक है, जो हम लोगों ने बात की, जैसी बात की departmental managers and branch managers, different department heads, they are responsible to the top level management for the functioning of the department. They devote more time to organizational and directional functions. हमने क्या कहा? Organizational and directional functions क्या? To direct the lower level management and all the subordinates to work in a unified direction for the development of the company. Then we have, in small organizations there is only one layer of middle level management, but in big enterprises there may be senior, junior, middle level of management and their role can be emphasized in different manner, जो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्लियर सी बात है ना, कॉमन सेंस है। इंग्लिश में है तो क्या छोटी सी बात है है कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनी, द वर्कफोर्स विल बी नॉट सो रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ज्यादा नहीं होगा। जब हम लोग बात करेंगे किसी बड़ी कंपनी की एग्जांपल लेंगे, बड़े फर्म्स की, वहां पर भी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होंगे। मिडिल लेवल में भी एक लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देयर विल बी अ सुपीरियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देयर विल बी अ सबऑर्डिनेट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बट general we need to understand that there are basically three layers: lower level of management, middle layer of management and top level of management. Okay, what are the functions of the middle level management? जो हम लोगों ने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी, they are responsible for the execution of the plans that are made by the top level management of the company. तो सबसे पहला तो देखो भाई वही पॉइंट है यहाँ पर। Then second is they make the plans of the sub units, as we have discussed that these are the people who are the heads of different departments. Finance का head, sales का head, marketing का head, etc etc. So these people are also responsible for running their own departments well versed. Okay, so they are responsible for that as well. Then we have our next point which says they participate in the employment and training of the lower level management. Actually, not only the lower level management, these are also responsible for the training and development of the whole workforce altogether. Okay, they are responsible for the अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्योंकि वो उसके लिए तो भैया आपका ऊपर से सीईओ और सीएमओ उतर के आएंगे नहीं, ये करना तो होगा उनके डिपार्टमेंट हेड्स को। कोई फिनेंस का इंटर्न है उसकी इंटर्नशिप कराना, कोई सेल्स का इंटर्न है उसको सेल्स में इंटर्न कराना, कोई प्रोडक्शन का इंटर्न है तो उसको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कराना,
ये सारा काम आपका एक मिडिल लेवल मैनेजर करेगा या उसका डिपार्टमेंट हेड करेगा फॉर बीइंग प्रिसाइज. Then we have the interpret and explain the policies from the top level management to the lower level management. जब हम लोग हाईलाइट ले रहे थे इस चीज की तभी हम लोगों ने बात कर ली थी that their work is to actually get the plans from the top level management, interpret it well and then connect the plan, execute the plan with all the lower level management. ठीक है, आपको अपने सारे लोअर वर्कफोर्स को अपने बॉसेस की उस पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करके बताना होगा, समझाना होगा एंड देन यू नीड टू वर्क इन अ यूनिफाइड डायरेक्शन. ओके, सारे मेन पॉइंट्स हमारे हो गए बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग भी अभी लेकर आए आपके लिए. नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज. नाउ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच लेवल. तो आप तो ये तीनों पॉइंट्स में लिख सकते हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो. दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द टाइप्स ऑफ मैनेजर्स. It is essential for the firm at each level of management. Okay, then we have it also sends reports to the top level management. Obviously जब वो scrutiny कर रहे हैं, scrutinize कर रहे हैं, अपने departments run कर रहे हैं, they will be giving the reports and all the data required to the top level management as and when required. ठीक है, now last में है हमारा evaluation of performance of the junior level managers and also responsible for the inspirational values given to the lower level management. आप अच्छे से काम करोगे, your workforce will be inspired to work according to you and according to the methods that are used by you in the company forever. Okay, तो पहली चीज तो वो है. and the second one is when you are actually inspiring, या उसको हम अगर एक easy term दे दें तो हो जाएगा instructing them to work in certain manner. You also need to check on the work that they are doing and reporting if it's not appropriate. Okay, ये easy points है basically to take care what is being done आपके lower level management में and to take care of the orders, instructions that are being given from the top level management. So it is one of the most crucial areas where a company needs to target अपनी middle level management. अगर वो apt है, strong है, sound है, it will help in the growth of the company for sure. अब होते कौन है मिडिल लेवल मैनेजर्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख ले तो देख लीजिए. जो हम लोगों ने बात की थी, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, रीजनल मैनेजर कैन बी देयर, डिविजनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फंक्शनल असिस्टेंट प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं. ये जो आपके सारे डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं ये सारा आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगेन शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है. लास्ट वीडियो हमारा होने वाला है अगला लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छा लगेगा. जल्दी अपलोड होगा वो भी. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग.